No? Well, so if no question, let us move to next portions of this unit. And this is on electronic band structure of different materials. And we shall be scanning them just one by one, just a quick overview, although I had asked you to go through that. But still, I thought because this is something really important, we can't skip. So I just thought of giving you an overview. So first question is, what is electronic band structure? So this is just E versus K, energy. How does energy of electron in a material vary as a function of wave vector of the electron? So in principle, for a one-dimensional material, the band structure is a 2D structure. I hope you could see that for 1D case, we were plotting like this was K, this was E. So this is a two-dimensional graph, right? In case we have a two-dimensional material, then the band structure is going to be a three-dimensional plot. One axis is going to be reserved for energy. And of course, wave vector will be having two components in that case, Kx and Ky. So that will be a three-dimensional graph, correct? In real life, we actually deal with three-dimensional materials most of the times. Therefore, how should be the band structure for a three-dimensional material, E versus K? So the Brillouin zone for a three-dimensional material will be a three-dimensional structure, means K space will be three-dimensional. And we have to represent energy of electron in K space. That's what we are saying. So that is going to be a four-dimensional figure, isn't it? Four-dimensional figure. But these kind of figures we can't visualize easily. So what we do actually is that we try to see the projection of band structure along various directions in reciprocal space or in the Brillouin zone. For example, silicon has FCC lattice. Diamond like structure होता है, FCC structure होता है, ठीक है? बहुत अच्छे से पढ़ चुके हम, so I'm not going into that. So if we want to see the band structure at every point K in this is the Brillouin zone for FCC. अब first 1D तो पता है plus pi by a minus pi by a है ना? 2D भी कुछ देखी थी हमने, 3D में complicated हो जाता थोड़ा मामला. This is just what you call Wigner's seed cell for 3D lattice, 3D FCC lattice. So what you can see here is that ये 3D structure होगा. So at every point, this is say 0, 0, 0, K equal to 0, 0, 0. By convention, we call it gamma point. इसको हम क्या कहते हैं? Gamma point represent करते हैं. These are called high symmetry points. Gamma, X. High symmetry means इन points के ऊपर symmetry जो होती है वो relatively high होती है. ठीक है? These are called high symmetry points. Gamma, X. And there are different others. Okay. Anyway, how to plot the band structure for such case? So basically, when we have to see the band structure for a 3D case, we plot it along various directions. So I suppose want to see how does energy of the electron vary while I go from gamma to X. So I will be scanning energy as a function of wave vector along, say, gamma to X. Say this direction, okay? Then there is some problem with this figure. I mean, this is not clearly visible, and all high symmetry points are also not shown here. So X is here, gamma P4. I think this is not shown here, but okay. The main thing is that we scan it in Brillouin zone along various directions. Say for example, this is also bisymmetry X. So you are seeing there are some squares, there are some hexagons. All these comes when we plot Wigner's seed cell in reciprocal space for FCC. There are some hexagons, and there are two kinds of things. So अलग-अलग high symmetry points हो सकते हैं. एक तो 0, 0, 0 पे highest symmetry होगी उसकी gamma. X is the point which is in center of these squares. Similarly, यहाँ पे जो points होंगे, where a square and a hexagon is meeting, उसका अपना एक नाम होगा. So all those points will be identical. तो इस hexagon के यहाँ पे जो भी points होंगे वो सभी identical होंगे, ठीक है?
Similarly, there will be some point in center of this hexagon that is going to be high symmetry point. So usually हम इन सभी directions में accordingly अलग-अलग directions में scan करें. I think this is called K. Center of the hexagon शायद K कहते हैं. ठीक है? This is X. और this is called L. One of them is L. I mean either this is K or this is K. So ये एक standard notations होती हैं. For that you can refer to internet. I mean Brilliant Zone for FCC आप डाल देना, आपको मिल जाएगा बड़े आराम से. Main thing, yes. सर सेंटर ऑफ हेक्सागोन गामा, सेंटर ऑफ हेक्सागोन को तो गामा बोलते हैं सर, और जो पॉइंट्स होते हैं हमारे उनको के और के डैश बोलते हैं, गामा बोलते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट. नहीं मतलब उसमें जैसे हम ग्राफीन के केस में देखते हैं ना सर, वहां पे नोटेशन अलग है ना. ग्राफीन इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर और वो 2D स्ट्रक्चर है. तो K इक्वल टू 0 इज गामा. K इक्वल टू 0 गामा होगा. जहां पे KX, KY, KZ 0 होंगे उसको गामा कहते हैं. ठीक है? 2D क्योंकि ग्राफीन में हेक्सागोनल स्ट्रक्चर, आई थिंक आई हैव गॉट दैट फॉर यू, नॉट दिस वन, यहाँ पे नहीं है, बट ओके कभी दिखा दूंगा, यू कैन गो एंड सी इवन. तो वहां पे क्योंकि 2D स्ट्रक्चर है, तो KX इक्वल टू KY इक्वल टू 0 उसको गामा बोलते हैं. दैट कम्स आउट टू बी सेंटर ऑफ दैट हेक्सागन. सो वो अलग केस है. ठीक है? वो 2D स्ट्रक्चर है. सो इन दिस केस दिस इज गामा. मेन थिंग इज कि भाई 0 पे बाय कन्वेंशन हम फेर्मी लेवल ले लेते हैं. ये एनर्जी एक्सिस है. सो बेसिकली ये जो बैंड स्ट्रक्चर हम देखते हैं किसी भी मटेरियल का, वो क्या है? दिस इज वेरी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, आई वुड से, कि वो स्पेसिफिक डायरेक्शंस में ही हमने देखा हुआ है कि हाउ डज E ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरी एज ए फंक्शन ऑफ वेव वेक्टर फॉर सर्टेन मटेरियल. अगर आप बैंड स्ट्रक्चर बनाएंगे गामा से X से, मान लीजिए इसको L बोलते हैं, L से, एक मिनट में देख ही लेता हूँ, लेट मी, सो दैट आई डोंट गिव यू द रॉन्ग इंफॉर्मेशन. अभी बना देता हूँ एक्चुअल ब्रिलियंट जोन, ठीक से ब्रिलियंट जोन दिखाता हूँ इसमें, एक मिनट. OUIN फॉर FCC, brilliant zone for FCC. There is a website called actual website का नाम है, एक सेकेंड, बहुत पहले I had used that. Let me actually try to go to that website itself. पहले मैं आपको brilliant zone दिखा देता हूँ. Copy. Let me put it in the same slide here. Okay. So I think something must be coming on your screen. This is actually the Brilliant Zone for FCC structure. तो यहाँ पे हमारा similar structure है, इसमें सारे high symmetry points marked हैं, मतलब. ठीक है? Where is my slide? Okay, that's here. ठीक है? So you can see now, center of this whole Wigner seed cell is gamma. कोई कुछ बोलना चाह रहा है? Anyone wants to say something? सर सॉरी, मेरा माइक ऑन रह गया था. तो ऑफ कर दो. ओके, तो ये आपकी है ब्रिलियंट जोन. ठीक है? ये गामा है आपका, जो सेंटर में होता है. K इक्वल टू 0 को गामा बोलते हैं. X वही सेम देखिए, जो भी आपका स्क्वायर का सेंटर है उसको X बोलते हैं. U बोलते हैं जहां इसका हाफ स्क्वायर की जो साइड है उसको बाइसेक्शन करता है पॉइंट. दिस इज कॉल्ड W. दिस इज कॉल्ड L. दिस इज कॉल्ड K. तो जब भी आप बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशन करते हो, यू स्कैन अलोंग वेरियस डायरेक्शंस. फॉर एग्जांपल ये जो करंट बैंड स्ट्रक्चर है, ये फ्रॉम L, आई थिंक दिस P4 इज गामा. ओके, ये इसने मार्किंग ठीक से नहीं करा है. L टू गामा. गामा के आसपास बैंड्स जो हैं वो पैराबोलिक होते हैं. एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करने वाली है ना, क्योंकि K इक्वल टू 0 के आसपास, K अप्रोचिंग 0 में फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन वैलिड रहेगी ना, तो बैंड्स विल बी पैराबोलिक, समथिंग लाइक दिस यू कैन से. सो ये यहाँ पे आप देख सकते हो, गामा से, सॉरी, L से गामा, गामा से X, X to K. You can see X point here, K point here. ठीक है? तो this is your X to K. And then K to gamma again. Finally, this is taken K to gamma.
तो बैंड स्ट्रक्चर जब भी आप किसी मटेरियल का देखते हो तो वो जरूरी नहीं है कि किसी ने प्लॉट किया है ये सिलिकॉन का बैंड स्ट्रक्चर है और आप बैंड स्ट्रक्चर निकालो, किसी दूसरे ने दिखाया है, उसकी लाइंस ऐसी है ही नहीं, उसकी लाइन कुछ और है. व्हाई इज इट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल बिकॉज ही मे हैव टेकन सम डिफरेंट डायरेक्शन. उसने हो सकता है गामा टू एल, एल टू के, के टू डब्ल्यू, डब्ल्यू टू एल, एल टू यू, यू टू एक्स, एक्स टू डब्ल्यू, डब्ल्यू टू गामा, ऐसा कुछ लिया हो. तो अकॉर्डिंगली ई वर्सेस के ऑफ कोर्स डिफरेंट होगा. बट बैंड स्ट्रक्चर इसीलिए बिकॉज दैट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड 4 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन. सो इसलिए उसको आप आपको अगर पूरी तरह से मटेरियल का ई वर्सेस के समझना है तो आपको बहुत सारी डायरेक्शंस में ई वर्सेस के लेना पड़ेगा. इट इज लाइक मैपिंग अ सरफेस विद द हेल्प ऑफ लाइंस, नॉट इवन सरफेस, द वॉल्यूम इन दिस केस. हम लाइन ड्रॉ करके पूरा एक वॉल्यूम को समझना चाह रहे हैं तो समझ नहीं सकते ना. बट हाँ, कुछ कुछ डायरेक्शन में अगर हमें एक आइडिया लग जाए, क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन मिल जाए, तो हम कुछ हद तक उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं और कुछ हद तक उसको जनरलाइज भी कर सकते हैं कि अच्छा, मान लीजिए गामा टू के डायरेक्शन में आपका बैंड स्ट्रक्चर की कोई स्पेसिफिक काइंड ऑफ पैटर्न आपको दिखा, तो आप कह सकते हैं कि गामा से डब्ल्यू में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं होगा या थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, समथिंग लाइक दिस, बिकॉज डायरेक्शंस सेम तरफ को है, हल्का फर्क हो सकता है. या के नियर बाई रीजन में अगर आप पॉइंट्स लेते हैं, कहीं भी आप ले सकते थे, तो भी आपका बैंड स्ट्रक्चर कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं होगा. दैट्स व्हाट इट मीन. मेन चीज यहाँ पे क्या है, फेर्मी लेवल के आसपास यू कैन सी देयर इज अ गैप. ये आपका वैलेंस बैंड मैक्सिमा है यहाँ पे. द वैलेंस बैंड मैक्सिमा लाइज एट गामा पॉइंट. कंडक्शन बैंड मिनिमा, लोएस्ट एनर्जी स्टेट इन कंडक्शन बैंड. अगेन कंडक्शन बैंड मिनिमा को ढूंढने के लिए या वैलेंस बैंड मैक्सिमा को ढूंढने के लिए आपको मल्टीपल डायरेक्शन में स्कैन करना पड़ सकता है. इफ यू डोंट हैव ए गामा पॉइंट, इफ यू हैव नॉट टेकन गामा पॉइंट, तो क्या होगा, आपका वैलेंस बैंड मैक्सिमा मिस हो सकता है बैंड स्ट्रक्चर में, है ना. सिमिलरली इफ यू डोंट हैव सीन फ्रॉम से गामा टू एक्स, क्योंकि वैलेंस बैंड मैक्सिमा और कंडक्शन बैंड मिनिमा, सो वैलेंस बैंड मैक्सिमा गामा पे लाई करता है, कंडक्शन बैंड मिनिमा जो है वो किस पे लाई करता है, गामा से एक्स के बीच में कहीं पे लाई करता है कंडक्शन बैंड मिनिमा. तो अगर ये आपने दो डायरेक्शन स्कैन नहीं करी है तो आपको बैंड स्ट्रक्चर में बैंड गैप ठीक से नहीं दिखेगा, गलत आएगा. सो यू हैव टू बी केयरफुल व्हाइल प्लॉटिंग बैंड स्ट्रक्चर एंड ऑब्टेनिंग बैंड गैप फ्रॉम बैंड स्ट्रक्चर. हाँ, एक चीज यहां से और पता चल रही है आपको, तो ये तो क्योंकि वेल एस्टेब्लिश्ड है, लोगों ने स्टडीज करके पता कर लिया है, तो इसीलिए उसने स्पेसिफिक डायरेक्शंस लिया है जो भी लिया है. If you people are available, maybe during vacations, I can take one class for you where I can show you how practically we can calculate band structure, but that is away from the syllabus. और वो आपकी रिक्वेस्ट पे मैं कर सकता हूँ if you are interested. ठीक है, रिक्वेस्ट पे क्या, आई थिंक संदीप को मैं भेजा भी था. देयर आर सम स्मॉल ट्यूटोरियल्स ऑन यूट्यूब where I have shown plotting the band structure also, I think. So वहां पे भी आप जाके देख सकते हो कि कैसे प्रैक्टिकली हम करते हैं ये सब चीजें. तो एक चीज ये लगती है, दूसरा यहाँ से दिस इज ए इनडायरेक्ट गैप मटेरियल बिकॉज देयर इज अ चेंज इन के while going from वैलेंस बैंड मैक्सिमा टू कंडक्शन बैंड मिनिमा. तो इनडायरेक्ट गैप सेमीकंडक्टर हुआ ये. और दो टाइप की होल, ये जो फेर्मी लेवल के नीचे जो होंगी दे विल बी होल पॉकेट्स. अगर आप डी स्क्वेयर के ई बाई डी के स्क्वेयर लेते हैं यहाँ पे, तो वो क्या आएगा, डी स्क्वेयर के बाई डी ई, डी स्क्वेयर ई बाई डी के स्क्वेयर क्या आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव हो गया या नेगेटिव. मैक्सिमा पे क्या आता है, नेगेटिव. नेगेटिव आता है तो इफेक्टिव मास विल बी एम स्टार विल बी नेगेटिव, मींस दिस इज रिप्रेजेंटिंग दी होल पॉकेट्स. और उसमें भी दो प्रकार की होल पॉकेट्स हैं. ये एक होल पॉकेट है जिसका कर्वेचर ज्यादा है, तो कर्वेचर ज्यादा है तो एम स्टार कम आएगा. सो इसमें इन स्टेट्स में अगर इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उनका इफेक्टिव मास कम होगा. और इसके साथ ही दूसरी जो स्टेट्स हैं, दूसरे जो बैंड्स हैं, ये वाली दूसरी जो बैंड्स हैं, ये भी होल टाइप ही पॉकेट्स हैं, दीज वन, बट देन दे हैव हायर कर्वेचर. हायर कर्वेचर मींस जो व्हाट यू कैन कॉल इफेक्टिव मास इज गोइंग टू बी सॉरी, इसमें कर्वेचर लोअर है, इसमें लोअर है कर्वेचर, इसमें कर्वेचर हायर है. तो इस केस में इफेक्टिव मास कम होगा, इस केस में इफेक्टिव मास ज्यादा होगा. देयर इज समथिंग कॉल्ड फ्लैट बैंड्स. कभी कभी कुछ मटेरियल में ऐसे फ्लैट बैंड आते हैं. ये अगर मान लो एनर्जी है, ये के डायरेक्शन है,
तो इनको हम बोलते हैं फ्लैट बैंड, और इनमें इफेक्टिवली जो m स्टार होगा विच इज प्रोपोर्शनल टू सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये लगभग कांस्टेंट है। कैन यू सी, दिस इज नॉट चेंजिंग विद e। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इनका 0 होगा, मतलब इफेक्टिव मास इज क्लोज टू इंफिनिटी, है ना। तो वहां पे वो मोबाइल स्टेट्स नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं कर पाएंगे, मतलब कंडक्शन को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। फ्लैट बैंड्स उनको बोलते हैं। सिमिलरली दीज आर योर इलेक्ट्रॉन पॉकेट्स, इनको हम इलेक्ट्रॉन पॉकेट्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वेयर ई बाई डी के स्क्वेयर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा वो, क्योंकि मिनिमा पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। So that is, these are all kind of information which are important. ये also, for example, this is also electron pocket, this is also electron pocket, here is another hole pocket. तो hole pocket conduction band में भी हो सकती है, depend करता है कौन सी states accessible हैं। So that's typical band structure of silicon. इसमें कोई सवाल किसी का आ रहा है तो बताइए, मतलब मैंने अपनी तरफ से जो मुझे important point लग रहे थे बता दिए हैं, but still if you find any question, you have any query, you can ask. Yes. कोई सवाल है किसी का? यस सर। हाँ बोलिए। सर इसमें जैसे हमने इस ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में लेके हमने बताया कि ये इनडायरेक्ट मटेरियल है हमारा। अगर मैं कोई और दूसरी डायरेक्शन कंसीडर करता हूँ जैसे के लिए, हाँ हाँ ठीक है, तो उस केस में भी मतलब ऐसा ही बनना चाहिए फिर तो हमारा। देखो इनडायरेक्ट गैप का मतलब है कि हमने सारी संभव दिशाएं स्कैन करने के बाद पता लगाया कि कहीं भी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो वैलेंस बैंड मैक्सिमा और ये जो है, ये सभी डायरेक्शन स्कैन करने के बाद किसी ने बैंड स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया, या वेल डॉक्यूमेंटेड लिटरेचर में लोगों को पता है अभी ये, कि भाई लोएस्ट जहां पे आएगा वो यहाँ पे आएगा, और किसी डायरेक्शन में जाओगे वो हायर होंगे। ठीक है, सो जो कंडक्शन बैंड मिनिमा जो है वो इसी पॉइंट पे लाई करेगा। आप किसी और डायरेक्शन में भी स्कैन करोगे तो आपको बैंड्स मिलेंगे, बट इस एनर्जी से ऊपर मिलेंगे बैंड्स। सो ओवरऑल मिनिमा ये है, दैट इज व्हाई देयर इज ओनली वन मिनिमा, है ना। मल्टीपल भी हो सकते हैं बाय सिमेट्री, बट ओके, आई मीन देयर इज इन दिस केस दिस स्पेसिफिक इज द कंडक्शन बैंड मिनिमा। सिमिलरली अगर आप वैलेंस बैंड को स्कैन करते हो डिफरेंट डायरेक्शन में, तो आपको मैक्सिमम एनर्जी गामा पॉइंट पे ही मिलेगी और जगहों पे नहीं मिलेगी। दे विल बी लोअर इन एनर्जी, जैसे यहाँ पे है एक्स पे लोअर है वैलेंस बैंड का, हाईएस्ट वैलेंस बैंड स्टेट एक्स डायरेक्शन एक्स पॉइंट पे कहाँ पे है, यहाँ पे है, विच इज बिलो दिस। दिस इज नॉट ऑफ कोर्स वैलेंस बैंड मैक्सिमा। एल पॉइंट पे अगर आप देखोगे वैलेंस बैंड की स्टेट हाईएस्ट वो यहाँ पे है, सो ये भी मतलब मैक्सिमम नहीं हुआ। सभी में ओवरऑल देखोगे यू विल फाइंड आउट इट इज एट गामा। तो इस तरह से किसी भी डायरेक्शन में लोगे तो अल्टीमेटली फाइनली आपको मिलेगा कि अच्छा ओवरऑल यही मैक्सिमा है, और सभी में स्कैन करने के बाद यहाँ पे ही मिनिमा आएगा। सो डायरेक्शंस डजंट मैटर, वो इनडायरेक्ट गैप ही रहेगा, मतलब क्लियर। यस सर। ठीक है, और कुछ सवाल? ओके, नो मोर क्वेश्चन। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सेम एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें इसने देखो अच्छे से मार्क किया है एल गामा एक्स यू गामा। ठीक है, ये देखो सिग्मा भी दिखाया है, सिग्मा लैम्डा, तो वो सब उसने दिखाया है यहाँ पे। कैन यू सी कैपिटल लैम्डा डेल्टा, तो दिस आर द पॉइंट्स। लैम्डा इज समवेयर लाइक गामा और एल के बिल्कुल मिड पॉइंट पे, सिग्मा इज समवेयर गामा और के मिड पॉइंट पे, डेल्टा इज समवेयर इन बिटवीन गामा एंड एक्स। सो वही इसने दिखाया होगा, देखो गामा और एक्स के बीच में डेल्टा है। कैन यू सी, सो इस तरह से ये आपके अलग अलग पॉइंट्स हैं। और मेन पॉइंट यहाँ पे नोटिस करने वाला है कि भाई डायरेक्ट गैप मटेरियल है, कंडक्शन बैंड मिनिमा और वैलेंस बैंड मैक्सिमा दोनों एक ही पॉइंट पे आते हैं, गामा पॉइंट पे। सो दैट इज व्हाट वी कॉल दी डायरेक्ट गैप मटेरियल, गैलियम आर्सेनाइड डायरेक्ट गैप मटेरियल, इसलिए आपको पढ़ाया जाता है। पर ये निकालना कैसे है, आपको बैंड स्ट्रक्चर प्लॉट करने पड़ेंगे, वहां से आएगा, बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो मेन पॉइंट इसमें यही है। यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन पॉकेट्स देख सकते हो, यहाँ पे 3 प्रकार की होल पॉकेट्स हैं, एक इस बैंड की है, एक ब्लू कलर के बैंड की है, एक ये जो पिंक बैंड है उसकी है होल पॉकेट। तो 3 प्रकार की होल पॉकेट्स हैं, है ना। फिर बहुत सारे इफेक्ट्स आप देख सकते हो कि स्पिन ऑर्बिट कपलिंग डालते हो तो क्या स्प्लिटिंग होती है, ये स्प्लिटिंग वो स्पिन ऑर्बिट कपलिंग से दिखा रहा है। ठीक है, सो वो हैमिल्टोनियन, जब भी आप बैंड स्ट्रक्चर कैलकुलेट कर रहे हो तो हैमिल्टोनियन में जो जो टर्म्स आप डालेंगे, हैमिल्टोनियन आपको याद होगा शुरू में हमने पढ़ा था, दैट हैज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन,
उसमें भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी अलग अलग कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कूलम इंटरेक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन, है ना, स्पिन और ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो होती है, एंड सो ऑन मेनी अदर थिंग्स। तो इसलिए डिफरेंट डिफरेंट इंटरेक्शंस जैसे जैसे आप इनकॉर्पोरेट करोगे बैंड स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ सकता है, दे कैन डिफर स्लाइटली। अब डिपेंड करेगा कौन सी इंटरेक्शन कितनी स्ट्रांग है। बहुत वीक इंटरेक्शंस होंगी उनसे थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, जैसे यहाँ पे पड़ा है स्पिन ऑर्बिट में, ये बैंड जो डीजेनरेट थे ओरिजिनली शायद स्पिन ऑर्बिट कपलिंग डालने से थोड़ी स्प्लिटिंग हो गई गामा पॉइंट पे कुछ बैंड्स की, एंड सो ऑन। So main point here is that gallium arsenide is a direct gap semiconductor, and then you can see how this looks like. ठीक है, इसमें कोई सवाल क्लियर कट है? खैर फिर भी कोई सवाल है आपका किसी का? नो सर। अच्छा, ये है जर्मेनियम, दूसरा एक और मटेरियल है ना, साथ में इसमें बनाया गया है ये वास्प एक कोड। देयर आर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कैलकुलेशन कोड्स, उनसे आप निकाल सकते हो ये। तो साथ में ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑफ स्टेट है ये, ठीक है। जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस में क्या पढ़ते थे हम, Ne इज प्रोपोर्शनल टू E रेज टू द पावर हाफ, DE बोलना चाहिए वैसे डॉस को, है ना, DE बोलते हैं हम, Ne नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, तो दिस इज डॉस। और ये बिलो फर्मी लेवल सारी स्टेट्स ऑक्यूपाइड है, जो ब्लू कलर में इसने दिखाई है, अब फर्मी लेवल सारी स्टेट्स एम्प्टी हैं। तो अब आपका सवाल जो है संदीप कि अच्छा वैलेंस बैंड मिनिमा, सॉरी वैलेंस बैंड मैक्सिमा और कंडक्शन बैंड मिनिमा सही है कि नहीं, तो बट इज डॉस इज एक्चुअली डेंसिटी ऑफ स्टेट कहां से आती है एक्चुअली, you have to integrate over full Brillouin zone and then add all the energy states. What we can say density of state के लिए आपको सभी energy states को add करना होगा। So suppose आप क्या करोगे, एक particular energy आपने ले ली, मान लो density of state is a function of energy, एक particular energy ली और उस पे आपने पूरे Brillouin zone में देखा सभी directions में कि कितनी energy states हैं, count करी आपने, उन सभी का सम यू कैन से, और क्योंकि ब्रिलियन जोन 3D वो है तो इंटीग्रल लेना पड़ेगा, उसका जो इंटीग्रल है दैट विल गिव यू, इट इज जस्ट समिशन ओवर एनर्जी स्टेट्स, ईच एनर्जी स्टेट्स को अगर आप काउंट करोगे यू कैन से समिशन ओवर डी क्यूब के ओवर द फुल ब्रिलियन जोन एट ए पर्टिकुलर एनर्जी DE टेकन एट ए पर्टिकुलर एनर्जी। तो इस तरह से आप लेंगे तो आप डेंसिटी ऑफ स्टेट निकाल सकते हो। अब सवाल है डेंसिटी ऑफ स्टेट में आपको सही वैल्यू ऑफ बैंड गैप आएगी, ठीक है, कि भाई क्योंकि सभी स्टेट्स ले रहे हैं आप, ब्रिलियन जोन जो यहाँ पे आपको डॉस मिलेगी, यहाँ पे भी डॉस मिलेगी। अब मान लो आपको ये पॉइंट आप नहीं ले रहे हो बैंड स्ट्रक्चर में, पर डॉस जब आप कैलकुलेट कर रहे हो तो सारे पॉइंट ले रहे हैं। सो समटाइम्स यू मे फाइंड आउट कि बैंड स्ट्रक्चर में जो बैंड गैप है वो हायर है, डॉस में लोअर है। इसका मतलब क्या हुआ कि दैट इन बैंड स्ट्रक्चर व्हेन यू आर प्लॉटिंग द बैंड स्ट्रक्चर you are missing certain direction where the valence band maxima और conduction band minima are lying, तो इसलिए आपको और डायरेक्शन स्कैन करनी होंगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली कौन सा वैलेंस बैंड मिनिमा, सॉरी कंडक्शन बैंड मिनिमा सही होगा, जहां पे जो डॉस का जो ये जो डॉस आई जहां पे वो जीरो होना शुरू हुई, डॉस में इसको आप बोलेंगे वैलेंस, सॉरी कंडक्शन बैंड मिनिमा, दिस वन इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड मिनिमा CBM, और डॉस में इसको हम बोलेंगे वैलेंस बैंड मैक्सिमा, दिस वन लोअर वन, दिस इज कॉल्ड VBM वैलेंस बैंड मैक्सिमा, और ये ऊपर वाला कंडक्शन बैंड मिनिमा। तो दोनों मैच करने चाहिए, दोनों मैच करके मतलब आपका बैंड स्ट्रक्चर सही है, ठीक है। इज दिस क्लियर? यस सर, पर इसमें पीक का क्या मीनिंग हुआ सर, जो पीक आती फिर हमारे? पीक मतलब उस पॉइंट पे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं, ये देखो यहाँ पे ज्यादा स्टेट्स होंगी ब्रिलियन जोन में, दिस इज जस्ट टेलिंग डेंसिटी ऑफ स्टेट एज द नेम इंडिकेट, कि यहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स हैं। अब वो क्यों होंगी, दे में भी अगर आप बैंड स्ट्रक्चर के ज्यादा डिटेल में जाओगे, सो एटम की कुछ अपनी एनर्जी स्टेट्स होती हैं, है ना, जैसे ही सॉलिड बनता है तो उन स्टेट के आसपास एनर्जी स्टेट्स डिस्पर्स होंगी बैंड बॉन्डिंग की वजह से, पर स्टिल वहां पे हाईएस्ट स्टेट आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं, नॉट ऑलवेज ट्रू बट समथिंग लाइक दिस। इस तरह से देख सकते हो, पीक्स के और भी बहुत सारे लेने वो रीजंस हो सकते हैं, बट यस मेनली आप इस तरह से रिलेट कर सकते हो कि यहाँ पे कोई शायद स्टेट थी, वहां पे आपकी ये जो स्प्रेडिंग हुई है, दिस हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ बॉन्डिंग,
दैट मे बी वन वे टू लुक एट दिस, ठीक है। तो मेन चीज है कि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स आर देयर, दैट्स व्हाट इट रिप्रेजेंट्स। और कुछ? यस, मैग्नेटिक मटेरियल, हाँ बोलो बोलो। वैलेंस बैंड मैक्सिमा और जो कंडक्शन बैंड मिनिमा, ये हमारा गामा पे लाई कर रहा है ग्राफ से। जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल, कईयों के लिए गामा में होता है, कईयों के लिए कहीं और भी होता है। इसी केस में सर, हैं? जर्मेनियम के केस हाँ, में यहाँ पे ग्राफ। तो गामा पे है ना, देखो यू कैन सी, ये देखो गामा पे है यहाँ पे। फिर ये तो डायरेक्ट हो गया सर, लेकिन जर्मेनियम तो इनडायरेक्ट होता है। जर्मेनियम इंडायरेक्ट होता है? हाँ जी। आर यू श्योर? यस सर। यार मुझे तो लगा डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट दोनों जर्मेनियम और सिलिकॉन इनडायरेक्ट होते हैं। So the reason for this may be that they have given a wrong band structure of the material. कि ये I don't know, they have calculated using, so there are certain things which may have given them the wrong results, but still I need to check. बहुत पहले मैं देखा था। Germanium is also an indirect gap. अच्छा, ओके। जर्मेनियम के केस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आसपास होते हैं। अगर आप इसको देखें, मेन चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है ये कि ये जो स्टेट्स है ना, अब आई डोंट नो, इसको प्रॉपर लाइनिंग्स अगर हम ड्रॉ करते तो हमें क्लियर होता। बट व्हाट दे आर शोइंग इज कि ये जो स्टेट्स हैं दे आर क्लोज टू ईच अदर। ये जो है ना, ये यहाँ पे जो दूसरी स्टेट्स हैं ये वाली, ठीक है। सो इट इज इंडीड इनडायरेक्ट। इसको अगर आप देखोगे यहाँ पे होगा इनडायरेक्ट शायद फिर, ठीक है। विजुअली देखने में आपको ये डायरेक्ट लग रहा है, बट इट इज इनडायरेक्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो आपको एक्चुअली ध्यान से प्लॉट करना पड़ेगा, मे बी ग्रिड लाइंस कैन हेल्प। तो ये शायद वो है उसका कंडक्शन बैंड मिनिमा है, ठीक है। सो वो थोड़ा केयरफुली आपको देखना पड़ेगा कि वेयर इज द कंडक्शन बैंड मिनिमा। सो इट इज इनडायरेक्ट बिकॉज दिस इज हियर इज आई थिंक द कंडक्शन बैंड मिनिमा, ठीक है। हाँ, दोनों जो है वो बहुत पास पास होते हैं, मतलब जो डायरेक्ट गैप है, इफ आई गो टू गूगल इटसेल्फ, जस्ट अ मिनट, तो जो डायरेक्ट गैप है वो 0.8 EV है, और इनडायरेक्ट गैप भी उसके आसपास ही रहता है। दे आर डिफरेंट बाय ओनली फ्यू मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये जो इसका और इसका जो गैप है वो कुछ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ही डिफर करता है। सो दैट इज व्हाई दिस इज समथिंग रियली स्पेशल, है ना, इंटरेस्टिंग चीज है। बट हाँ, इसलिए इनडायरेक्ट ये इसलिए बन गया क्योंकि जो लोअर हो जाता है वो हो जाता है दूसरे किसी पॉइंट पे। इज इट ओके? यस सर। ओके, यस सर। तो दिस कंप्लीट्स द बैंड स्ट्रक्चर कि क्या होते हैं और किस तरह से इंटरप्रिटेशन करनी है। कुछ और तरह के भी बैंड स्ट्रक्चर्स हम देख सकते हैं, बट नॉट हियर। और क्लास अगर आपको चाहिए होगी तभी दूंगा उसको। से मैग्नेटिक मटेरियल के किस तरह से होते हैं, है ना, और कई डिफरेंट, ये तो बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के एग्जांपल्स हैं, और भी बहुत सारे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दैट वी कैन डिस्कस सम अदर इन सम अदर क्लास। इसके बाद हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, विच इज ऑन फेर्मी सरफेसेस। सो आई एम जस्ट शेयरिंग दैट स्लाइड विद यू। So band structure हमने देख लिया, what is a band structure, right? Now we will be talking about what is the role of these Fermi surfaces, ठीक है। तो या फेर्मी सरफेस पहले होते क्या हैं, हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो फेर्मी सरफेस क्या होता है? जब आप बैंड स्ट्रक्चर किसी भी मटेरियल का देखते हैं, लेट मी ट्राई टू टेक सम डिफरेंट इंक। ओके, जब भी आप किसी मटेरियल का बैंड स्ट्रक्चर देखते हैं, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और हमने कहा कि ये फेर्मी लेवल है, मान लो। वो इस तरह से भी जरूरी नहीं है, आई मीन इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल टू मटेरियल। फेर्मी लेवल कहाँ लाई करेगा, सेमीकंडक्टर होगा तो 0 डॉस पे होगा। बट हाँ, मेटल्स के केस में एक समथिंग
या कोई भी मटेरियल है, मेटल में स्पेसिफिकली, फेर्मी लेवल के आसपास की जो स्टेट्स होती हैं वो इंटरेस्टिंग स्टेट्स होती हैं. व्हाई दोज स्टेट्स आर इंटरेस्टिंग? बिकॉज दोज आर द स्टेट्स एक्सेसिबल टू द इलेक्ट्रॉन्स एट फाइनाइट टेम्परेचर्स. क्यों? फेर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन गोज लाइक दिस, राइट? आई होप आपने ये प्लॉट कहीं ना कहीं देखे होंगे. सो अगर ये फेर्मी लेवल है आपका, तो फेर्मी लेवल के कुछ मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट आसपास की जो स्टेट्स होंगी वो फाइनाइट टेम्परेचर पे आपको आपकी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं. और वो स्टेट्स जो पार्शियली एम्प्टी या पार्शियली ऑक्यूपाइड होती हैं, जो पूरी तरह से खाली हैं वो किसी काम की नहीं है, जो पूरी तरह से भरी हैं वो भी किसी काम की नहीं है हमारे, बिकॉज दोज आर कंप्लीटली ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन. But the states where electrons are able to make transition and those are partially empty and partially filled, those states play an important role in many interesting properties of the material. Electronic conductivity, thermal conductivity, वो सभी जो हैं, those are one such interesting properties. तो इसीलिए फेर्मी एनर्जी पे जो 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 कांस्टेंट, मतलब फेर्मी एनर्जी पे अगर हम बैंड स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो कुछ स्पेशल इंटरेस्ट का होता है. व्हेन यू सी द बैंड स्ट्रक्चर अराउंड फेर्मी एनर्जी, दैट इज ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट. सो दैट एंड दैट इज कॉल्ड फेर्मी व्हाट यू कॉल सरफेस. वी आर मूविंग टुवर्ड्स दैट. सो यही सेम चीज, लेट अस टॉक. दिस इज टिपिकल बैंड स्ट्रक्चर फॉर ए फ्री इलेक्ट्रॉन गैस. कांस्टेंट एनर्जी पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो 1D केस के लिए 2D स्ट्रक्चर होगा, तो हम कांस्टेंट एनर्जी पॉइंट की बात करेंगे. मान लो मैंने ये पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एनर्जी चूज किया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास 2 पॉइंट्स होंगे. इफ आई चूज, सपोज आई हैव चूजन, ओके, आई नीड टू चेंज द कलर ऑफ द इंक. सो सपोज मैंने ये वाला पर्टिकुलर एनर्जी वैल्यू चूज किया, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास क्या होंगी? कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ के होंगी. दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट एनर्जी पॉइंट्स. ठीक है. सिमिलरली अगर हम एक पर्टिकुलर एनर्जी के लिए वन डायमेंशनल केस के लिए देखेंगे तो 2 पॉइंट्स आएंगे, मतलब ब्रिलियन जोन में. ठीक है. एक पॉइंट यहां पे आएगा, अगर हम एनर्जी को भूल जाते हैं, सिर्फ ब्रिलियन जोन में देखते हैं, एक पॉइंट यहां पे आएगा. इफ वी सी द सेम थिंग इन 2D केस, 2D केस में कांस्टेंट एनर्जी पॉइंट्स नहीं होंगे, कांस्टेंट एनर्जी कंटूर्स होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए, एंड दोज आर गोइंग टू लुक लाइक सर्कल्स. क्योंकि ये 2D इलेक्ट्रॉन गैस के लिए पैराबोलॉइड होता है जो बैंड स्ट्रक्चर होगा, मतलब 2D पैराबोला, उस तरह से देखने की कोशिश कर सकते हो. और उसका एक पर्टिकुलर एनर्जी पे अगर आप स्लाइस काटते हो, सो दैट विल लुक लाइक अ सर्कल. एक मिनट में वो डालना, आई मीन आई थिंक देखता हूं. पैराबोलॉइड इमेज फटाफट से एक बार डाल देता हूं. कोई इमेज अच्छी सी जो इमेज है इसको ही ले लेते हैं. जस्ट अ मिनट. कमिंग टू योर स्क्रीन्स. अभी मेरे क्लिक किया कि चलो दिखाई देते हैं आपको. सो इफ यू ट्राई टू सी 2-dimensional इलेक्ट्रॉन गैस और 2-dimensional फ्री इलेक्ट्रॉन गैस, तो उसका जो बैंड स्ट्रक्चर होगा E वर्सेस K, वो कुछ 2-dimensional पैराबोला की तरह होगा, विच वी कॉल द पैराबोलॉइड. एक सेकेंड. दिस इज हाउ दैट इज गोइंग टू लुक लाइक, है ना. 2D के केस में इस तरह का कुछ दिखना चाहिए वो, वेयर आवर वर्टिकल एक्सिस इज एनर्जी एक्सिस और 2 एक्सिस क्या होंगे? kx ky. जो दो, आई मीन इस एक्सिस के परपेंडिकुलर जो वर्टिकल टू दिस स्लाइड है उसके परपेंडिकुलर जो होंगे वो होंगे kx और ky, right? So there will be something like kx along this direction, there will be ky perpendicular to this, maybe like this, ky, and energy axis will be vertical. ठीक है. और उसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी पे अगर मैं देखता हूं, so this is something like your energy axis. This is something like your, if I choose a particular energy value,
say this one, and cut a slice of this particular surface in xy plane, that is going to look like a circle. तो यही इसने ड्रॉ किया है. तो 2D के केस में हम इनको बोलते हैं कांस्टेंट एनर्जी कंटूर्स. इज इट क्लियर? विजुअलाइज हो रहा है? समझ आया? यस सर. यस सर. तो 2D के केस में कांस्टेंट एनर्जी कंटूर इनको बोलेंगे. पहले 2D के केस को समझ लेते हैं. तो और 3D के केस में दे विल बी लाइक कांस्टेंट एनर्जी सरफेसेस. ठीक है. अब वही कंटूर अगर एक स्पेशल है, किसके लिए? सपोज वी टेक E इज इक्वल टू EF. तो 2D के केस में इसको हम बोलेंगे फेर्मी कंटूर, और 1D के केस में दे विल बी फेर्मी पॉइंट्स. 3D के केस में दे विल बी फेर्मी सरफेस. 1D के केस में पॉइंट, 2D के केस में लाइन, 3D के केस में सरफेस होगा. तो फेर्मी सरफेस क्या हुआ? इट इज द सरफेस whose energy is equal to Fermi energy. ठीक है. So this is called Fermi surface. अब डिपेंड करेगा भाई फेर्मी जो एनर्जी है वो कितनी है, हाई है, लो है, उसके हिसाब से हो सकता है मेरी ये मेरा 2 डायमेंशनल मटेरियल के लिए ब्रुलियन जोन है, तो 2D स्क्वायर लैटिस के लिए ब्रुलियन जोन दिखाया है हमने. सो दिस विल बी लाइक प्लस पाई बाई ए. 2D स्क्वायर लैटिस के लिए स्क्वायर ही होगा, वो प्लस पाई माइनस पाई बाई ए होगा ये वाई डायरेक्शन में. एक्स डायरेक्शन में भी पाई बाई ए स्क्वायर लैटिस है. अगर ये है, सॉरी, वाई के लिए ये 0 0 0 है आपका. दिस इज योर गामा पॉइंट, ये सेंटर में जो होता है. सो इधर को मेरा प्लस पाई बाई ए होगा, इधर को मेरा माइनस पाई बाई ए होगा. सिमिलरली अपवर्ड्स में प्लस पाई बाई ए वाई की वैल्यू, और माइनस वाई भी डाउनवर्ड में ब्रुलियन जोन बाउंड्री जो होगी वो माइनस पाई बाई ए. दैट्स योर 2D स्क्वायर लैटिस का ब्रुलियन जोन. 2D स्क्वायर लैटिस को लेके चीजें समझेंगे, फिर जनरलाइज कर सकते हैं. थोड़े विजुअलाइजेशन कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे. नाउ इफ द फेर्मी एनर्जी इज स्मॉल, इफ EF इज स्मॉल, तो क्या होगा? तो मेरा जो फेर्मी सरफेस होगा वो हो सकता है कि पूरा का पूरा फर्स्ट ब्रुलियन जोन में ही आ जाए. ठीक है. और अगर फेर्मी एनर्जी ज्यादा है तो हो सकता है वो सेकंड में कंप्लीट हो जाए. बहुत ही ज्यादा है तो हायर ब्रुलियन जोन्स में भी फेर्मी सरफेस आपका जा सकता है. क्लियर? यस सर. अच्छा, अब इसको हम थोड़ा और समझते हैं. मान ली एक जनरल केस ले लेते हैं जिसमें कि फेर्मी सरफेस किसी भी ब्रुलियन जोन में हो सकता है. अब इसको हमने कैसे फर्स्ट ब्रुलियन जोन में लाना है? हमने पढ़ा भाई पीरियोडिक जोन स्कीम, रिड्यूस जोन स्कीम, एक्सटेंडेड जोन स्कीम. तो ये अभी जो फेर्मी सरफेस है फ्री इलेक्ट्रॉन गैस के लिए ये एक्सटेंडेड जोन स्कीम में है, बिकॉज वी हैव प्लॉटेड ऑल द ब्रुलियन जोन्स. हाउ टू गेट द फेर्मी सरफेस बैक टू फर्स्ट ब्रुलियन जोन? हमने पढ़ा था कि भाई E ऑफ K प्लस G किसके बराबर होता है? E ऑफ K के बराबर, K के बराबर. सो कोई भी स्टेट है, K की बजाय मैं KF ले लिया. KF मतलब फेर्मी वेव वेक्टर. फेर्मी वेव वेक्टर मतलब ये टॉकिंग अबाउट फेर्मी एनर्जी. फेर्मी वेव वेक्टर जब ले लिया तो कोई भी स्टेट को मैं ट्रांसफॉर्म करके, ये स्टेट सभी फर्स्ट ब्रुलियन जोन के बाहर में है. दिस पर्टिकुलर रीजन, जस्ट अ मिनट, this particular region is second Brillouin zone. This particular region is also second Brillouin zone. ये जो ट्राइंगल जैसी हैं, ये भी सेकंड है, ये भी सेकंड Brillouin zone है ना? तो सेकंड Brillouin zone से फर्स्ट Brillouin zone में अगर कुछ लाना है, ये पोर्शन लाना है, तो मैं क्या करूंगा? G सब्ट्रैक्ट कर दूंगा इसमें से, हर एक वैल्यू, हर एक पॉइंट में से G सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. तो G कितना होगा? 2 पाई बाई A. ये एरो की जो लेंथ है मैंने 2 पाई बाई A के पास रखी है. दिस लेंथ जो है ये प्रोपोर्शनल है एरो की लेंथ पे. प्रोपोर्शनल क्या? इक्वल है मतलब. ठीक है. तो G सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो मेरा पोर्शन आएगा सेकंड ब्रुलियन जोन से फर्स्ट ब्रुलियन जोन में, तो ये कहां को आएगा? आई विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दिस, बिकॉज दिस स्टेट when I will bring back, when I will subtract G will reach here. Similarly other twos, ये यहां पहुंच जाएगा और ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा. तो ये पूरी की पूरी ट्राइंगल ये वाली हो जाएगी. सिमिलरली ये ट्राइंगल को अगर हम लेते हैं
इधर वाली को वो यहाँ पे आ जाएगी। चारों ट्राइंगल्स को जब आप अंदर फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में लाते हो, then what you get as a resultant is something like this. So this is the Fermi surface का portion taken from second brilliant zone to first brilliant zone. पूरा Fermi surface नहीं आया, यही point हुए Fermi surface के इसके, ये वाले points, है ना, ये वाले points. बाकी Fermi surface का जो region है वो थर्ड ब्रिलियंट जोन में भी है, फोर्थ में भी है, एंड सो ऑन. सो अभी सिर्फ ये points of Fermi surface are brought back to फर्स्ट ब्रिलियंट जोन. दिस इज कॉल्ड ब्रिलियंट जोन फोल्डिंग, है ना, कि फोल्ड करके हमने उसको पहले ब्रिलियंट जोन में ला दिया. तो ये फर्स्ट ब्रिलियंट जोन, ये कोई एक ब्रिलियंट जोन है, सभी फिर पीरियोडिक स्कीम में दिखा दिया. सो दिस इज रिप्रेजेंटिंग सरफेस ऑफ और द पार्ट्स ऑफ फेर्मी सरफेस फ्रॉम सेकंड ब्रिलियंट जोन टू फर्स्ट ब्रिलियंट जोन. क्लियर कैसे हुआ ये? किटल का चैप्टर 9 है आई थिंक, फेर्मी सरफेसेस पे. इज इट क्लियर हाउ इट केम? यस सर. सिमिलरली थर्ड से लाना है तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा, इसमें मैं डिटेल नहीं डाला, ऐसा कैसे? अच्छा हाँ, डाला है, ठीक है. ये थर्ड से फर्स्ट में लाएंगे तो ऐसे होगा. कैसे? देखो, ये वाले पोर्शंस जो हैं, ये थर्ड ब्रिलियंट जोन है. यहाँ पे यहाँ मिलता है, सॉरी, जब आप बनाओगे तो ये पोर्शन बनेगा आपका, ये थर्ड ब्रिलियंट जोन होगा, ये वाला, ये वाला. इसी तरह सभी के थर्ड ब्रिलियंट जोन इस तरह से आप बना सकते हो, क्योंकि हमने ड्रॉ करा है स्क्वायर लैटिस के लिए, तो ये यहां से मिलता है, यहां से कट होते जाता है. सॉरी, इट क्रॉसेस थ्रू दिस पॉइंट. सो दिस इज थर्ड ब्रिलियंट जोन, है ना. तो अगर मैं ये वाला पोर्शन को फर्स्ट में ले जाना है तो मैं क्या करूंगा, ये वाला पोर्शन पूरा ऊपर जाएगा, तो G प्लस कर दिया इसमें, जो भी बोल रहे हो 2π/a. तो क्या होगा, ये पॉइंट मेरा यहां पे आ जाएगा और ये हाफ पे होगा. सो दिस पॉइंट विल कम समवेयर हियर एंड सो ऑन. तो मेरा ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन कहां पे आ जाएगा? यहां पे, इन दोनों को मिला के. देखो, मतलब ये पोर्शन जब ऊपर गया और इधर वाला पोर्शन जब यहां पे आया, इन दोनों को मिला के ये पोर्शन मेरा बना फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में, थर्ड ब्रिलियंट जोन से जो फेर्मी सरफेस आया. सिमिलरली बाकियों को करेंगे तो ये ऊपर वाला इधर लाएंगे, इधर वाला इधर लाएंगे, तो ये बन जाएगा. औरों को भी इसी तरह से आप करके देख सकते हो. सो दिस रिप्रेजेंट्स द फेर्मी सरफेस के जो रीजन्स हैं, जो थर्ड से आएंगे फर्स्ट में. ठीक है, क्लियर? सिमिलरली फोर्थ से फर्स्ट में सेम चीज, ये वाला फोर्थ ब्रिलियंट जोन है आपका, ये वाले रीजन्स, ये वाले फोर्थ ब्रिलियंट जोन के रीजन है. इसको लाओगे तो ये बन जाएगा, और बाकी भी लाके देख सकते हो. तो इस तरह से बनके आपको हायर ब्रिलियंट जोन से कैसे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में फेर्मी सरफेस को लाना है, यू कैन सी दैट विद द हेल्प ऑफ दिस. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर टू मेक इज दैट, अब आप बोलोगे अच्छा कितने ब्रिलियंट जोन से लाना पड़ेगा? भाई डिपेंड करेगा फेर्मी वेव वेक्टर कितना हाई है. फेर्मी वेव वेक्टर अगर हाई होगा, फेर्मी एनर्जी हाई होगी, तो वो और हायर ब्रिलियंट जोन्स तक जाएगा. तो जहां तक भी आपका पहुंच रहा है फेर्मी वेव वेक्टर, वहां तक से आपको फेर्मी सरफेसेस फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में लाने पड़ेंगे. और जितना ज्यादा होगा उतना ही कॉम्प्लेक्स फेर्मी सरफेसेस होंगे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में, और उतनी ही कॉम्प्लेक्स उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज होंगी. ठीक है, जैसे एल्कली मेटल्स के बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है. एक इलेक्ट्रॉन देता है एक एल्कली मेटल का एटम, और एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, आई मीन इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम विल बी लेस, hence Fermi energy is going to be less because Fermi energy is proportional to electron density. So accordingly Fermi surface is going to be more or less like spherical. तो उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो किससे मैच करेंगी? more or less like free electron theory से. But if you go to more complex metals like D block elements, F block elements, तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज हैं हाई होंगी, because each atom contributes something like large number of electrons, 3-4 इलेक्ट्रॉन्स पर एटम भी हो सकते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंगली फेर्मी एनर्जी विल बी हाई. फेर्मी एनर्जी विल बी हाई मतलब फेर्मी सरफेस विल बी एक्सपेंडिंग टू हायर ब्रिलियंट जोन्स, एंड अकॉर्डिंगली द प्रॉपर्टीज ऑफ दोस मटेरियल्स आर नॉट दैट इजी टू अंडरस्टैंड, है ना. तो फेर्मी सरफेस मतलब बड़ा होगा उसमें. ठीक है, मेन चीज ये है.
दूसरा तरीका फेर्मी का सरफेस को ड्रॉ करने का हैरिसन कंस्ट्रक्शन है। तो आप क्या करते हो, आप पीरियोडिक जोन स्कीम में ब्रुलियन जोन बना लीजिए, पूरे पीरियोडिक जोन स्कीम में रेसिप्रोकल स्पेस दिखा दीजिए, और हर एक पॉइंट के आसपास जो है आप क्या करिए, एक फेर्मी वेव वेक्टर को बराबर का सर्कल ड्रॉ कर लीजिए, है ना। तो इस पॉइंट को, ये मेरा एक पॉइंट है, ये मेरा सेंटर है, तो एक सर्कल इसका होगा, ठीक है। इसका लिया, दूसरी ली नेबरिंग, उसका भी एक सर्कल लिया, तीसरी ली, इसका भी एक सर्कल लिया, से दिस वन, आई एम सॉरी, ये वाली, सिमिलरली ये लिया, इसका भी एक सर्कल ड्रॉ करा, इस तरह से। तो फेर्मी सरफेस के फर्स्ट ब्रुलियन जोन में कौन से पार्ट आएंगे, यहां से पता लगा सकते हैं। The Fermi surface in nth Brillouin zone is the boundary separating regions covered by n circles and the regions covered by n-1 circle. Interesting. तो ये जो मेरा रीजन है यहां पे, इसमें मेरा सिर्फ कितने सर्कल हैं, सिर्फ एक ही सर्कल आया है, ये वाला, ठीक है। इस रीजन को कौन सा सर्कल ओवरलैप कर रहा है, सिर्फ ये वाला ही। सेकेंड ब्रुलियन जोन से फर्स्ट ब्रुलियन जोन में कौन से सरफेस के पॉइंट्स होंगे, वो होंगे जो कि n-1, तो सेकेंड मतलब n इज इक्वल टू 2 -1, वो रीजन जो सिर्फ एक ही सर्कल द्वारा ऑक्यूपाई किया गया है, विच इज दिस वन, रेड वन, विच आई जस्ट हाईलाइटेड, और दूसरा वो रीजन जिसमें कि दो सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं। तो वो रीजन कौन सा हुआ जिसमें दो सर्कल ओवरलैप कर रहे होंगे, एक सेकेंड, आई नीड टू चेंज द कलर। वो रीजन कौन सा होगा, दैट इज गोइंग टू बी दिस रीजन, यू कैन सी, ये सारा रीजन जो है, ये वाला रीजन, सॉरी ये वाला, इधर वाला छोड़ दो, ऊपर को जो गया, ये वाला रीजन जो है, इसमें दो सर्कल हैं। कौन सा वाले दो सर्कल हुए, एक तो ये वाला जो इसके अराउंड है, दूसरा वाला ये सर्कल जो इसके लेफ्ट की तरफ से जो ब्रुलियन जोन था उससे जो बना। सो ये जो रीजन, ये जो लाइन है जो सेपरेट कर रही है इन दोनों रीजन्स को, ये सारी लाइंस, दीज आर कॉन्स्टिट्यूटिंग द फेर्मी सरफेस कमिंग फ्रॉम द सेकेंड ब्रुलियन जोन टू फर्स्ट ब्रुलियन जोन। तो इन जनरल nth, तो थर्ड से फर्स्ट को कौन सा होगा, n इक्वल टू 3 लेना पड़ेगा आपको। n इज इक्वल टू 3 अब अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, जहां पे 3 सर्कल ओवरलैप कर रहे हैं माइनस वो रीजन जहां से दो सर्कल ही ओवरलैप कर रहे हैं, तो 3 वाला ये रीजन हुआ। सॉरी, यू कैन आइडेंटिफाई दैट आई थिंक योरसेल्फ, बट एक क्विकली सब बता देता हूं आपको, है ना। 3 वाला कौन सा हुआ, एक सर्कल ये है, 1 2 3, ये वाला रीजन जो है ये 3 वाला है, ये वाला है ना। यहाँ पे 3 सर्कल्स ओवरलैप कर रहे हैं, और वो रीजन कौन सा है जहां पे 2 सर्कल ओवरलैप कर रहे थे, ये वाला। दिस इज द रीजन वेयर 2 सर्कल्स आर ओवरलैपिंग। तो कौन सा वाला हुआ, थर्ड का जो थर्ड का फेर्मी सरफेस हुआ, ये वाला, वही जो हम ड्रॉ किए थे। दिस वन इज द पार्ट ऑफ फेर्मी सरफेस फ्रॉम थर्ड। तो इस तरह से आप निकाल के देख सकते हो कि भाई हैरिसन कंस्ट्रक्शन बोलते हैं इसको, कि किस तरह से हम हायर ब्रुलियन जोन से फर्स्ट ब्रुलियन जोन में फेर्मी सरफेसेस को प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट, एनर्जी गैप का कॉन्सेप्ट आ जाता, पहले तो ये तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के विद इन था सारा कहानी। अब अगर एनर्जी गैप आ जाता है, कैसे ये चीजें अफेक्ट होंगी। तो यू नो एनर्जी गैप ओपन्स अप एट से ब्रुलियन जोन बाउंड्रीज। तो वन डायमेंशन में चीजें कैसे चेंज होंगी, अगर आपका ये फेर्मी पॉइंट्स थे तो सॉरी, ये आपका जो है वो क्या होगा, दिस इज हाउ द बैंड स्ट्रक्चर इज गोइंग टू लुक लाइक एट जोन बाउंड्रीज। आई होप आप देख पा रहे हैं, है ना। ये जोन बाउंड्रीज पे इस तरह से फर्क पड़ेगा, है ना, ये जो ऑरेंज लाइन में दिखाया आपको, ठीक है। अब डिपेंड करेगा कि फेर्मी लेवल कैसा होता है। तो फेर्मी पॉइंट अगर यहाँ पे आते हैं, बहुत लो है, ये देखो दोनों जगह पे चेंज हो रहे हैं ना। आई होप यू शुड नोटिस दिस पॉइंट्स। इफ द फेर्मी लेवल इज लो, तो फेर्मी पॉइंट्स ऐसे कुछ आएंगे, दैट विल बी अ मेटल, ठीक है। इफ द एनर्जी इज लिटिल हायर, तो पॉइंट्स थोड़ा और बाहर चले जाएंगे, ठीक है। आई होप यू कैन सी दैट।
Similarly, if energy is still higher, and the points will be moving further outward towards the Brillouin zone boundary. Again, you can see Fermi level rising further high, and points are moving further towards the zone boundary. Interesting thing will happen near to the zone boundary. ठीक है, तो जोन बाउंड्री पे जब आप पहुंचते हो, अब आपका फेर्मी लेवल अगर है तो आपकी एनर्जी देखो, आप देखोगे लो ही रह रही है, इतनी एनर्जी आएगी ना। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से दिस पॉइंट शुड हैव बीन एट जोन बाउंड्री, बट नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई भी अप्रोक्सीमेशन आप लेते हो तो आपका पॉइंट कहां पे आएगा, वो पाई बाई ए पे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि ये एनर्जी का कंटूर अगर आप लेते हैं, क्योंकि एनर्जी इसके आगे देयर विल बी ए फॉरबिडन गैप, करेक्ट। फॉरबिडन गैप होगा तो वो स्टेट्स पाई बाई ए वाले में कोई स्टेट्स ही नहीं होंगी, isn't it? K equal to pi by a वाले में कोई स्टेट्स ही नहीं होगी, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी नहीं होगी आपकी। हालांकि ये आनी चाहिए थी, पर यहाँ पे तो कोई एनर्जी है नहीं, करेक्ट, कोई एनर्जी है नहीं, तो फॉरबिडन स्टेट्स हुई। तो नेक्स्ट स्टेट्स कहाँ आएंगी आपकी, फर्स्ट ब्रिलियन जोन से स्लाइटली बाहर, ठीक है, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से भी अगर आप देखते हैं। एंड देन इफ यू मूव फर्दर, देन K goes further to higher Brillouin zone, and accordingly, ये तो इन जनरल K का आपका डिस्क्रिप्शन था भाई। K जो है हायर ब्रिलियन जोन्स में या लोअर मतलब फर्स्ट ब्रिलियन जोन में कैसे अपीयर करेगा, लो वैल्यू ऑफ फेर्मी एनर्जी के लिए कैसे होगा, हाई वैल्यू ऑफ फेर्मी एनर्जी के लिए कैसा होगा। ये जो पॉइंट्स हैं दोस आर ऑफ स्पेसिफिक इंटरेस्ट, राइट। तो यहाँ पे आपका जो है K के साथ एनर्जी चेंज नहीं करती है। इफ यू सी दिस ग्राफ केयरफुली, then in this region energy doesn't change with K. Can you see? एनर्जी लगभग पैरेलल हो जाती है K एक्सिस के यहाँ पे जोन बाउंड्री के आसपास, करेक्ट। सो दैट इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग, है ना। तो इफ यू ट्राई टू सी ग्रेडियंट ऑफ एनी फंक्शन इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, है ना। जहां को फंक्शन इंक्रीज कर रहा होता है उस डायरेक्शन में ग्रेडियंट होता है, एंड इट इज परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट फंक्शन की जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसके परपेंडिकुलर होगा। आगे हम बात करते हैं। तो कांस्टेंट एनर्जी कंटूर्स पे क्या फर्क पड़ेगा, एक्चुअली दिस इज व्हाट वी वर टॉकिंग, है ना। सो कांस्टेंट एनर्जी कंटूर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द ग्रेडियंट ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू K। डेल्टा E बाई डेल्टा K अगर आप लेते हैं तो जो ग्रेडियंट होगा उसका वो किस डायरेक्शन में होगा, कोई भी एक फंक्शन लेते हैं आप, मान लो, एक मिनट ऐसे देख लेते हैं। ग्रेडियंट की अगर आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी तो कोई भी फंक्शन होता है, इधर को मान लीजिए ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सो ग्रेडियंट क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एंड इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन जहां पे वो रेट ऑफ चेंज हाईएस्ट होता है, ठीक है। सेम चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई ग्रेडियंट विल बी परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट एनर्जी सरफेस, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे हम बोल रहे हैं, हाईएस्ट डेरिवेटिव। सो दिस इज बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द, आई मीन बिकॉज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ग्रेडियंट द फंक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि ग्रेडियंट के परपेंडिकुलर की जो डायरेक्शन होगी वहां पे फंक्शन अनचेंज्ड रहता है। ये भी देख सकते हैं आप, ये हमारा ग्रेडियंट हुआ, इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन हुई ये वाली है। इधर अगर आप देखते हैं छोटे से रीजन में तो मेरा फंक्शन अनचेंज्ड रह रहा है। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग हियर, सेम थिंग हियर। तो कांस्टेंट एनर्जी कंटूर भी जो है इज ए सर्कल इन केस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये हमने पढ़ लिया। एज द ग्रेडियंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड, कांस्टेंट एनर्जी कंटूर जो है सर्कल के लिए रेडियल आउटवर्ड होगा ग्रेडियंट। नियर टू द जोन बाउंड्री द ग्रुप वेलोसिटी d ओमेगा अपॉन dk शुड वैनिश, क्योंकि क्या होगा वहां पे मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे, वो हमने पढ़ा था उसको, है ना। सो d ओमेगा अपॉन dk वैनिश करेगा। दिस रिक्वायर्स द ग्रेडियंट मस्ट बी पैरेलल टू द जोन बाउंड्रीज। तो यहाँ पे क्या होगा, यहां से आप देख सकते हो कि भाई ये है आपकी जोन बाउंड्रीज, है ना। ये सारी क्या है, आपके जोन बाउंड्रीज हैं ये। कैन यू सी, ये मेरा फेर्मी सरफेस है जोन बाउंड्री से क्रॉस करते हुए, मतलब दीज आर ऑल द पॉइंट्स वेयर the Fermi surface is crossing the zone boundary,
यहाँ पे देखो जोन बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे जोन बाउंड्री को क्रॉस कर रहा है एंड सो ऑन, है ना। तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल या बैंड गैप जो ओपन होता है उसका क्या फर्क पड़ेगा फेर्मी एनर्जी कंटूर पे, ये इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से। क्यों? दिस नाउ इज, ये था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी वाला, ठीक है, और आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये मुड़ के ऐसे हो गया, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दी ब्रिलियंट जोन, जोन बाउंड्री के परपेंडिकुलर हो गया वो, ठीक है। जस्ट टू मेक श्योर दैट ग्रेडियंट इज पैरेलल टू दी कांस्टेंट एनर्जी कंटूर, ठीक है। सॉरी, gradient is not parallel, but gradient, I mean, this gradient is parallel to the zone bound. इस तरह से gradient होगा आपका dk over de over dk, ठीक है, इस तरह से होगा आपका। So ये इफेक्ट होगा आपका जो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन का, किस पे? फेर्मी एनर्जी कंटूर्स पे, ठीक है। इज दिस क्लियर, या इसमें कोई सवाल आ रहा है किसी का? पूछो जरा अगर कोई कंफ्यूजन है, पता नहीं इफ आई कुड मेक इट क्लियर और यू डिडंट अंडरस्टैंड। इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। चलो, टिल चैप्टर 9 फिर से देखना एक बार इसको ना, पर दैट्स व्हाट इट इज। तो ये फर्क पड़ेगा आपके उसमें, सेम चीज जो हमने 1D के केस में की थी, 2D के केस में दिखाया हमने, ठीक है। वही सेम चीज हमने E वर्सेस K के टर्म्स में दिखाने की कोशिश करी है, ठीक है। इसी तरह कांस्टेंट एनर्जी कंटूर्स पे एक्सटेंडेड जोन स्कीम में इस तरह से होंगे हमारे कांस्टेंट एनर्जी कंटूर। इनको भी कैसे फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में लाना है, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन, अब सेम ही चीज है, अब हम कर रहे हैं सारी चीजें विद इन नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन। तो फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में कैसे आएगा ये आपको यहां दिखाया गया है। ये हायर ब्रिलियंट जोन से किस तरह से विद इन नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन अप्रोक्सीमेशन आएंगे, इस तरह से दिखाया है। जो हमने पहले फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के लिए पढ़ लिया, ये नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के हिसाब से है सारी पिक्चर, ठीक है। सेम चीज, ये आपका फर्स्ट से आया, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में ये इस तरह का दिखना था, नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में इस तरह का दिखेगा, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे, ये सेकंड से फर्स्ट में आया, नहीं थर्ड से फर्स्ट में आया, तो नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में इस तरह से दिखेगा। अब आप बोलोगे अच्छा ये तो कुछ उल्टा सा लग रहा है, सेम नहीं है। सो बेसिकली इस केस में हमने एक्सटेंडेड जोन स्कीम से ये वाला पोर्शन उठाया है, ठीक है। इस तरह से एक फ्लारी शेप बनेगी इसकी, तो उसको उठाया हुआ है, दैट्स वन एंड सेम थिंग, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके, देन देयर कम्स ए कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉकेट, होल पॉकेट एंड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, होल ऑर्बिट एंड ओपन ऑर्बिट कुछ, अच्छा वो मैं शायद इसमें डाला नहीं। तो अगर आपका इस तरह से है, इस तरह के जो ऑर्बिटल्स हैं या इस तरह की जो स्टेट्स हैं फेर्मी सरफेस की, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, क्योंकि इसके अंदर वाला एरिया ऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन को, ऑक्यूपाइड स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, बाहर वाला एम्प्टी स्टेट्स को। ये वाली जो स्टेट्स होती हैं फेर्मी सरफेस पे, उनको हम बोलते हैं होल लाइक स्टेट्स, क्योंकि इस केस में जो कर्व के अंदर का एरिया है वो एम्प्टी है, और कर्व के बाहर का एरिया जो है वो क्या है, वो फिल्ड स्टेट्स को दिखाता है। सो इसलिए दीज आर कॉल्ड होल ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, होल ऑर्बिट्स। कभी कभी ये आपके ओपन भी हो सकते हैं, मतलब ये जरूरी नहीं है कि क्लोज्ड शेप्स ही हो इसकी फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में, उस केस में उनको हम कहते हैं ओपन ऑर्बिट्स इन फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। फेर्मी सरफेस के मतलब कुछ रीजन्स इस तरह से फर्स्ट ब्रिलियंट जोन में आ सकते हैं दैट दे डोंट क्लोज, दे डोंट फॉर्म क्लोज्ड शेप्स, दोज आर कॉल्ड ओपन ऑर्बिट्स, ठीक है। So इलेक्ट्रॉन स्टेट्स या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, होल ऑर्बिट्स एंड ओपन ऑर्बिट्स, ये भी एक कॉन्सेप्ट आता है जब आप फेर्मी सरफेस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है। देन कम्स दिस इज अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ फेर्मी सरफेस फॉर ए 3D मटेरियल। 2D कर लिया था ना, 3D में इस तरह के कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप्स के फेर्मी सरफेसेस हो सकते हैं। ये एक पर्टिकुलर एनर्जी, अब ये जो लाइंस है ना, ये एक स्पेसिफिक एनर्जी को दर्शा रही हैं। जैसे हमने बैंड स्ट्रक्चर में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बैंड स्ट्रक्चर लेते थे, 3D मटेरियल के लिए जब हम फेर्मी सरफेस देखते हैं तो उसका एक स्लाइस काटते हैं हम, एक पर्टिकुलर kz के लिए या एक पर्टिकुलर kx के लिए। सो इफ यू कट द फेर्मी सरफेस एट kz इज इक्वल टू से पाई बाई a मान लीजिए, तो वो इस तरह का दिखेगा कुछ। आप kz थोड़ा और डिफरेंट लेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा।
and so on. So this is how Fermi surfaces are represented for a typical 3-dimensional material. तो वो भी मतलब हम इस तरह से दर्शाते हैं, उनके स्लाइसेस करके दिखा सकते हैं. 4D फिगर्स भी बनते हैं कुछ सॉफ्टवेयर में. अगर आप लोग इच्छुक होंगे तो आई कैन डू वन मोर, आई मीन उसी बैंड स्ट्रक्चर वाली क्लास में आपको फेर्मी सरफेस भी प्लॉट करके दिखा सकता हूँ किस तरह से वो दिखते हैं. देयर आर सर्टेन सॉफ्टवेयर्स एंड आई हैव डन इट, सो आई कैन शो इट फॉर यू इफ यू आर इंटरेस्टेड देन, बट दैट इज बियॉन्ड सिलेबस. आपकी सिर्फ इंटरेस्टिंग, इफ यू आर इंटरेस्टेड उसके हिसाब से ही उसको रख सकते हैं. ठीक है. सो इज दिस क्लियर अप टू दिस पॉइंट? Yes, sir. कोई सवाल है किसी का? तो एनीवन? चलो, नहीं सवाल है तो वेरी गुड, बहुत टाइम हो गया आज. तो वेल, नेक्स्ट क्लास में फटाफट से हम देखेंगे कि फेर्मी सरफेसेस को हम किस तरह से मेजर कर सकते हैं. देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक कॉल्ड एंगल डिसॉल्व फोटो एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी. ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का यूज करके हम निकालते हैं. ये कुछ छोटा मोटा एक्सपेरिमेंटल सेटअप, बहुत डिटेल में नहीं क्योंकि सिलेबस का ये बहुत डिटेल पार्ट नहीं है. दैट्स वन वे ऑफ मेजरिंग फेर्मी सरफेसेस एक्सपेरिमेंटली. There is another way of doing it which we call DHVA, D Haas-Van Alpen effect. वो क्या होता है उसको भी देख लेंगे थोड़ा सा. और एक छोटा सा लेक्चर होगा टाइट बाइंडिंग मॉडल पे, टाइट बाइंडिंग अप्रोक्सीमेशन पे, कि बैंड स्ट्रक्चर्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम. एंड दैट विल कंप्लीट दिस यूनिट. तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप टाइट बाइंडिंग मॉडल कल पढ़ के आए. ठीक है. बाकी ये टाइट बाइंडिंग मॉडल का मैं बताऊंगा आपको क्विक ओवरव्यू, मगर आप स्वयं भी पढ़ के आए ताकि बहुत सारी चीजें मैं फटाफट से बोलूंगा. अगर आपके डाउट्स रहे होंगे अपने आप से जब आप पढ़ के आएंगे, हाँ, उन डाउट्स को जरूर हम क्लियर करेंगे डिटेल में. ठीक है. अदरवाइज आई विल क्विकली जंप थ्रू दी टाइट बाइंडिंग मॉडल एंड आई विल शो दिस टू टेक्निक्स टू मेजर फेर्मी सरफेसेस एंड दैट्स इट. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट यूनिट. ठीक है. Well, that's all for today. Thank you very much. Your attendance quickly on in the chat box. Meanwhile, I am also trying to. Okay, मैं orally भी लगाऊंगा तो आप थोड़ा hold करो. Attendance क्योंकि बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे हैं. चलिए attendance बोलिए अपनी roll number wise. Just a minute. Today is 22 December 2020. अंकिश प्रेजेंट है? एब्सेंट एज यूजुअल. अंकित नेहरिया Present, sir. अंशुल कुमारी? Yes, sir. कितना? Yes, sir. दीपाली? Yes, sir. धर्मेंद्र एब्सेंट. क्या हो गया धर्मेंद्र को? हरीश? Yes, sir. हिमांशु? Yes, sir. कल्पना? Yes, sir. कोमल? Yes, sir. मनीषा? Yes, sir. मनीषा कौंडल एब्सेंट. रिताक्षी? Yes, sir. अच्छा प्रेजेंट है. रितिका? Yes, sir. साक्षी? Yes, sir. स्मृति? Yes, sir. शगुन? Yes, sir. शिवांगी? एब्सेंट. श्रेया एब्सेंट. सौरभ? Yes, sir. सौरभ प्रेजेंट है. सुदेश? Yes, sir. तनु? Yes, sir. उमेश? Yes, sir. विशाली? Yes, sir. विवेक? Yes, sir. अमित? Yes, sir. दीक्षा एब्सेंट. अंकुश? Yes, sir. प्रियंका? Yes, sir. साहिल? Yes, sir. दिवाकर? Yes, sir. दिवाकर पिछले बड़े टाइम से एब्सेंट थे, क्या हो गया?
सर लास्ट क्लास में प्रेजेंट था सर, लास्ट में सिग्नल की वजह से वो लेफ्ट हो गया सर। मैं कंप्लीट हो चुकी थी, मैं चैट ये तुम्हारी तो है अटेंडेंस दी थी सर। चलो ध्यान रखिए, आगे से अटेंडेंस बोला करो, नहीं तो मुझे मेल से कन्वे कर दो अगर नहीं हो पा रहा है, सुन पाए हो तो। राहुल, सिग्नल का भी इशू रहता है सर, बीच बीच में लेफ्ट होता रहता है। मेल तो कर ही सकते हो ना? यस सर। मेल करके कन्वे कर दो मुझे अगर कुछ गड़बड़ है तो, या आप अटेंड नहीं कर पाए या कुछ जो भी कारण है, तो यू शुड कन्वे इट टू मी कि इस कारण की वजह से, ताकि मेरे पास एक रिकॉर्ड रहेगा कि अच्छा कौन से बच्चे को क्या समस्या आ रही है। यस सर। अदरवाइज इफ देयर इज नो रिप्रेजेंटेशन पीपल मे एंड इन ट्रबल, क्योंकि मेरे लिए तो तुम जानबूझ के नहीं आ रहे हो ना। मेल लिखना कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कॉल कर दो, मेल लिख दो, कुछ तो कर दो। यस सर। फॉर एग्जाम्पल अ फ्यू पीपल आर टोटली, आई मीन अंकिश तो पहले ही मैंने बहुत बारी हाईलाइट किया है, ये क्या नाम है इसका, अपना धर्मेंद्र भी काफी एब्सेंट मार रहा है, क्या है पता नहीं क्यों। तो ऐसे कुछ कुछ लोग हैं, अभी मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट सभी को ये ध्यान रहे कि मुझे कन्वे जरूर करें अगर कोई गड़बड़ है तो। यस सर। वेल दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। हाँ बोलिए कुछ। हेलो सर। हाँ बोलो। जैसे नेटवर्क प्रॉब्लम सर, अब्सेंट लगा दी सर आपने मेरी। हाँ तो मैंने सोचा तुम हो नहीं, तुमने बोला नहीं कुछ सर, उस टाइम चल ही नहीं रहा था नेट। ये भी तुम्हारी किस्मत खराब है। कल थे तुम, पिछली क्लास में थे 17th को, उसमें भी नहीं थे। यस सर। चलो मैं देखूंगा, चैट में किसी ने डाला होगा तभी देखूंगा, ठीक है। यस। वेल ओके, फाइन, दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।